Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kim karma kima karmeti kavayo api atra mohitaha tatte karma pravakshyami yagyatva moksha se ashubha. Even the intelligent are bewildered in determining what is action, what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which we shall be liberated from all sins. Last time we had a similar shloka. Anybody remembers the shloka? Evam gyata kritam karma purvai api mokshivihi. The whole point was last time, purvai. If you want liberation, you have to go to purvai, to the great authorities in the past. Sometimes we see this happens in the society. What happens? Let's go. What happens in the society sometimes? I remember in Delhi, there was, the bus rate for a month used to be 12.5 rupees. Highly subsidized. Just, 12 rupees is nothing. And once the government made it to some 20 rupees, at least 100 buses are burnt. If you remember those days, it was like a joke, Crores of rupees buses are burned just for few rupees. Why? Because that is the kind of training we are giving to our children. Completely untrained. They do not know how to act. How not to act. Kim karma, kim akarmeti. What to do, what not to do. There is no training today. Unfortunately, only training is today sense gratification. Again, I recall when sometimes my classmates used to visit my house. For 3-4 hours they are there. I used to just present them different ways of sense gratification. We can enjoy like this. Something what I've enjoyed. What do you share? What are you enjoying? Correct? Come here, that I will show you that. Come, we'll show you that. Just trying to gratify. And even whenever we get an opportunity, whole day we get a holiday thinking how to enjoy. This is wrong. This is akarmeti. Karma, vikarma is not easy to determine. Therefore, Krishna is saying here, even intelligent people cannot determine. Kim karma kim akarmeti kavayo api atra mohitaha. Kavayo means referring to kavis, poets. Means basically referring to, even if you are a great intelligent man, you cannot determine what you should do or what you should not do. How you should determine? Purvai api. Like last class we discussed, correct? You have to refer to the authorities. With your intelligence, you cannot determine. That's what the mistake everybody is doing today. Just like you cannot decide sitting at home what is the law. You have to refer to the constitution. It is not your decision. No, I have decided that in the road we should drive to the right. Who cares? The law will take course. You will be punished. Agreed? But law has some system, it has some basis. So similarly, you cannot determine the law sitting at your home. This is the total mistake happening today. You have holiday, one day free. What I should do, what I should not do, you cannot determine. Ata pumbe dvaja sheshta varnashama vibhagashaha swanustita dharmasya samsiddhi haritoshanam. Actually, the determination of everything, on what basis then you determine?
You don't determine, the Shastra determines, but it gives you the essence of it. Everything is satisfaction of Vishnu. So we are in different situations in this life. Somebody is brahmachari, somebody is grahastha, somebody is vanaprastha, somebody is sannyasi, somebody is brahmana, somebody is kshatriya, vaishya, shudra. People are playing different roles in the society, correct? Even now, brahmana means not birth brahmanas. Again we have to clarify, because it is total madness today. It means what we are doing, our guna karma vibhagashaha. So we are playing different duties according to the what we are situated. If you are a student, your duty is to study. Your duty. It's not that I like to do that. There is no, it's like a right-based culture and duty-bound culture are completely different. Vedic culture, Hindi or English? Right-based culture is completely different. Totally different है. Right-based culture में क्या होता है? मेरा क्या अधिकार है? आजकल का समाज ऐसे ही है. मेरा अधिकार क्या है? And पहले वैदिक कल्चर इज मेरा कर्तव्य क्या है? कर्मण्येव अधिकारते मा फलेषु कदाचन. What is Krishna saying? He is very cleverly saying, because everybody wants right. That's the nature of the conditioned soul. He says you have an adhikara. Adhikara means आपका right. क्या अधिकार है? कर्मणि एव अधिकारः ते. आपका अधिकार है अपना कर्तव्य करो. ये आपका अधिकार है. You have a right to perform your duty. Very cleverly Krishna says. You want right. What's your right? You have a right to do your duty. That's it. So in this way, actually society becomes very well governed. Society becomes very peaceful. When everybody is doing activity, सब लोग अपना काम कर रहे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है. ये नहीं मेरा इंद्रिय भोग क्या है. Why? Then immediately sinful activity will start. Rishivadeva says, Nunam pramatta kurute vikarma. क्या है इसमें? किम कर्मा किम अकर्मेति. क्या करना है नहीं करना है. So this is similar to vikarma. It says that Rishivadeva says, if you make sense gratification the goal of your life, then definitely you do sinful activities. And today यही society का mistake है. इंद्रिय भोग सोसाइटी का लक्ष्य है. करेक्ट? पूर्वै अपि मुमुक्षुभिः. Nobody is targeting liberation, because liberation is not target. जैसे आपको अगर जाना है यहाँ से बेलमान, अगर आप केरला के रोड में निकल गए वो गलत है, और इस रोड में निकल गए वो ठीक है. तो आपके लक्ष्य पे आधारित होता है क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ नहीं है. किम कर्म किम अकर्मेति. बुद्धिमान लोग भी इस पर क्यों गलत कर रहे हैं? बिकॉज उनके पास लक्ष्य ठीक नहीं है. किसी को बोलो दारू नहीं पियो, क्यों गलत है? मेरा जिंदगी का लक्ष्य ही इंद्रिय तृप्ति है, मज़ा आता है, तुम क्यों रोक रहे हो मेरे को? कैसे रोकोगे इस आदमी को? आप कोई कभी नहीं रोक सकते. आजकल क्यों है 20% स्टूडेंट्स या ज़्यादा पता नहीं ड्रग्स लेते हैं, गांजा खा के पड़े रहते हैं. क्यों? बिकॉज उसका जिंदगी का लक्ष्य वही है, इंद्रिय तृप्ति करना. एंड ऋषिवदेवा एक बहुत बड़ा चेतावनी दे रहे हैं. चेतावनी होता है वार्निंग. क्या वार्निंग दे रहे हैं? कि अगर तुम इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य बनाओगे, महापाप कर, तुम्हारे हाथ से महापाप हो जाएंगे, रुक नहीं पाएगा. बिकॉज वो स्लाइडिंग स्लोप, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. पहले सिगरेट से शुरू करते हैं, फिर उसमें किक उतना नहीं लगता, थोड़ा बड़ा 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 बड़ा, उसके बाद ड्रग्स खा के भी संतुष्ट नहीं होता, मर जाता आदमी. हाँ, और अगले जीवन पता नहीं क्या, सीधा यमलोक, उसके बाद पता नहीं क्या, कीड़े मीड़े के जीवन. सो क्यों? जीवन का लक्ष्य गलत है. सो हेयर कृष्ण ने समझाया है कि क्योंकि आपको इतना बुद्धि नहीं है, ये शास्त्र विधि में उत्सृज्या, शास्त्र की विधि फॉलो करो. अगर शास्त्र की विधि आपने उत्सृज्या छोड़ दी, बिकॉज शास्त्र की विधि बहुत सोच के बनाई जाती है. जैसे डॉक्टर आपका पूरा प्रेस्क्रिप्शन देता है बहुत सोच के. आप अच्छा डॉक्टर आपकी पूरी स्थिति देख के, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, ये करना. क्यों? अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आप लक्ष्य फुलफिल हो जाएगा, है ना. हॉस्पिटल का लक्ष्य क्या है? आप वहाँ से हेल्दी होके बाहर आ जाओगे. तो इस ब्रह्मांड का भी जो सृष्टि है उसका लक्ष्य है.
ये मूर्खता है जो आजकल प्रचारित करा जा रहा है कि ये जो ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है अकस्मात एक हो गई है. Therefore, we are creating millions of people without aim and in the society. Why? Because of the nonsense education system. ये जो मूर्खता सिखाई जा रही है अनफॉर्चुनेटली इन दिस एजुकेशन सिस्टम, उससे जो बच्चे बाहर आते हैं जीवन का उनका लक्ष्य नहीं है. सृष्टि भगवत गीता में कृष्ण लिखते हैं यह दानव प्रवृत्ति है. देवी प्रकृति दानव प्रवृत्ति का पूरा चैप्टर है भगवत गीता में. उसमें लिखा अगर कोई बोले व्हाट इज द श्लोका, दिस वर्ल्ड हैज कम बाय एन एक्सीडेंट, ही इट इज दानव. कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, वो दानव बोलता है. ये अकस्मात नहीं बना है, ये प्लान से बनाया गया है. कोई भी अकस्मात कोई चीज़ नहीं बनती. ये टेबल अकस्मात नहीं बनती, माइक अकस्मात नहीं बनता, कॉमन सेंस भी इसको एग्री नहीं करता. सो एक्चुअली दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड विद अ पर्पस. यू अंडरस्टैंड? सो वर्ल्ड इज क्रिएटेड विद अ पर्पस, एंड देन व्हेन आई हैव माय लाइफ it has to be dovetailed in such a way that I can achieve the purpose. Just like हॉस्पिटल जो है वो सोने के लिए नहीं है, उधर पर्पस है. क्या पर्पस है? जो आदमी एंटर होता है हेल्दी होके जाने का. तो सिमिलरली ये यूनिवर्स का भी एक पर्पस है. इस सृष्टि को जो निर्माण किया गया है पर्पस है, क्योंकि हम जो गधे लोग हैं एक भगवान का अच्छा भक्त करके बाहर निकले. करेक्ट? इस यूनिवर्स सिस्टम में एक आदमी एंटर करता है जानवर का जैसा प्रवृत्ति लेके, भोग करेगा, और ट्रेनिंग होके बाहर आता है, भगवान का सेवा करेगा. सो दिस इज टोटली लैकिंग इन द सोसाइटी. डेफिनेटली इतना तो सिखाना है, वो मानते हैं कि कैसे अपना पेट पालना है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है. अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर वो आदमी थोड़ा पैसा मिलेगा जानवर के जैसे कूदता है. आज आपको देखे कहीं भी सिटी चले जाइए जहाँ पे लोगों को सैलरी मिलता है, जानवर की तरह कूदते हैं वो लोग. मतलब आपको ऐसा शौक हो जाएगा उनके विचार देख के, बुजुर्ग लोगों के भी विचार देख के आपको बिल्कुल भयभीत हो जाओगे. ये क्या हम संस्कृति क्रिएट कर रहे हैं? कह रहे क्यों? बिकॉज उनको सिखाया नहीं जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है. और जीवन का लक्ष्य नहीं है तो कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है, कुछ भी चीज़ बुरी नहीं है. आदमी महापाप भी कर देता है. इसलिए दैट इज जहाँ जहाँ पे इंडिया में पीपल आर अबंडेंट द कल्चर. साउथ इंडिया में इतना भी नहीं गिरा है, कुछ स्टेट्स में इंडिया में टोटली दे अबंडेंट. उनका जो व्यवहार है देख के शर्म आती है, शर्म आती है. मतलब ऐसा व्यवहार लोगों का हो गया. क्यों? कोई बंदिश ही नहीं रही अभी. तो धर्मेन विहीना पशु भी समाना. अगर आदमी को धर्म नहीं है वो तो जानवर है. करेक्ट? आप जानवर को जाके बताओगे किम कर्मेति, क्या समझ आएगा उसको? ये तुमको ये करने का, तुमको ये नहीं करने का. कर सकते हो क्या? नहीं. एक्चुअली जानवर भी थोड़ा ट्रेन हो जाता है, आजकल के मनुष्य से ज़्यादा ट्रेन हो जाता है. वो भी उसका व्यवहार भी एक्चुअली उसका जो व्यवहार है उसमें कुछ पाप कर्म नहीं है, बिकॉज उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है. वो एक एक्सपीरियंस के थ्रू जा रहा है जिसकी वजह से उसकी नेक्स्ट प्रकृति होगी और नेक्स्ट शरीर मिलेगा. 80 लाख योनि है जानवरों की. करेक्ट? जानवरों की, पंछी मच्छी मिला के 80 लाख योनि है. 4 लाख मनुष्य की योनि है. तो 80 लाख योनि में जानवर का बिहेवियर ऐसा रहता है, पूरा उसको कोई फ्रीडम नहीं है. और उससे वो उसका धर्म वही है. अगर कुत्ता भौंकता है वही उसका धर्म है, उसमें कोई पाप नहीं होता उसको. लेकिन मनुष्य को फ्रीडम मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है. जैसे आप जा रहे हो, एक सोच लिए एक जंक्शन आ जाता है जिसमें अभी 84 लाख चॉइसेस हैं. 84 लाख के बाद एक और चॉइस है वैकुंठ धाम जाने की. अब आप चाहो तो 84 लाख उसमें चले जाओ या वैकुंठ धाम चले जाओ. ये आपका जंक्शन है. जानवर के शरीर में कोई चॉइस नहीं है. आप बस एक लाइन पे ही चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो. रोड होती है ना, हाईवे, चलते रहो. कीड़े से शुरू हुआ, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो. 80 लाख योनि पूर्ण करके एक जंक्शन आता है ह्यूमन लाइफ में. उसमें आपको फिर चॉइस मिलती है. आप इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो. हाईवे होता है ना, कभी कभी कट करने का भी चांस नहीं मिलता. कोई चॉइस नहीं, बस चलते रहो. तो जानवर का जीवन कुछ नहीं है, बस हाईवे में चलते रहो, आगे चलते रहो. ठीक है? और उसका धीरे धीरे अलग अलग जानवर के जीवन में, अलग अलग पंछी के जीवन में अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस है. उससे आदमी ग्रेजुअली ग्रो होता है. ठीक है? सो कैसे डिटरमिन करें फिर मनुष्य जीवन में कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है? बहुत सिंपल है. अतः पुंबीज विदा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सहा
सुनिश्चितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। अगर वो चीज़ कृष्ण को खुश करती है, अच्छी है, और कृष्ण को बुरी लगती है, बुरा है। करेक्ट? इफ इट इज सेटिस्फाइंग कृष्णा इट इज गुड, एंड इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइंग कृष्णा इट इज बैड। यही गीता का ज्ञान है ना, और क्या है गीता में। अर्जुन ने युद्ध के पहले सोचा था मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा अगर युद्ध ना हो। It is bad. Why? He is thinking of his own indriya tripti. Therefore, it is bad. And if it is satisfying Krishna, it is fight, because it is common sense wise Arjuna thought ahimsa is better. Why kill so many people? That should not be a criteria. Kim karma kim akarmeti kavayo api mohita. Krishna is saying, Arjuna, don't use your so-called foolish intelligence. Work for my satisfaction, because even big people cannot understand what is to be done, what is not to be done. अर्जुन अपना छोटा सा दिमाग लगा के सोच रहा था ये युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मूर्खों का काम है ना। Now society, you see, so many problems are coming. Why? Because people are not referring to the Shastra. They are just thinking, I will do this or I will not do this. This is a very big mistake in a society. We should refer to the standard books. They will guide us. It is not easy. By your own intelligence, you will be lost. ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, अगर आप शास्त्र की गाइडेंस छोड़ दें, वर्तते काम कारिणः, यू वर्क जस्ट टू सेटिस्फाई योर कामा, न स सिद्धि मापनोति, जीवन का कोई सफलता नहीं होगा, न शांति, कोई शांति नहीं है तुम्हारा जीवन में। ये पराम गति तो भूल जाओ। और आजकल देखो कितना बैड ट्रेनिंग है बच्चों का पूरा ट्रेनिंग इंद्रिय तृप्ति, मजा 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 मजा। मतलब उनको मैं 5 मिनट देखो मैं तो गुस्से तो पागल हो जाता हूँ। मजा 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 मजा, 5 मिनट नहीं बैठ सकते। बैठाओ 5 मिनट जरा जब करो, नहीं बैठ सकता। मजा मजा है, जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रेनिंग हो रहा है उनका। ट्रू। अब पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ बच्चा बेटा और मजा करो, और मजा कर, ऐसे मजा कर, ऐसे मजा कर। एक्चुअली प्रॉपर से बच्चों का ट्रेनिंग होना चाहिए। दे शुड गो stand in front of the deities, they should see the aarti, they should see the kirtan. Slowly unka, it is an opportunity, they get molded. But today there is no training. And what they are going to achieve in life? There is no achievement in life. Na param gati, there is no achievement. Okay, so Chaitanya Mahaprabhu particularly wanted, Bharat Bhumile Janma Hoy Yaar. We are so fortunate because we are born in the land of India. Janma sarthak kari karo paropkar. Make your life successful and benefit the whole world. प्रॉपर जी बोलते हैं भारत में जीवन दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं होना चाहिए। करेक्ट? दुनिया भर में यही है। जैसे आप सिटी में देखो, एक आदमी दूसरे को बेवकूफ़ बनाना चाहता है और सेठ बनना चाहता है। ऐसा ही है, सब एक दूसरे को बेवकूफ़ी बना रहे हैं, उसी को धंधा बोलते हैं। आप किसी डीलिंग के लिए जाओ, वो उसने अच्छा पैसा दे दिया, हो गया मैं सफल, और वो बेचारा बेवकूफ़ बन गया। करेक्ट? दुनिया में यही हो रहा है, एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो प्रॉपर जी बोलते हैं इंडिविजुअली कलेक्टिवली कंट्रीज भी यही कर रही हैं। तो भारत भूमि में जो जन्म है इस चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए, ये तो परोपकार के लिए जन्म होना चाहिए। भारत भूमि ले जन्म हो यार, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों? आपका जन्म एक बहुत पवित्र स्थल में हुआ है, भारत भूमि। ठीक है? क्यों? यहाँ पे बड़े बड़े संत आए थे, भगवान खुद आए थे, कृष्ण आए थे, भगवान राम आए थे, चैतन्य महाप्रभु आए थे, वेदव्यास जी आए थे। बड़े बड़े संतों ने इधर जन्म लिया है। बड़े बड़े मतलब भगवान ने भी इधर ही अपनी लीला दी है। बड़े बड़े संत आए, चैतन्य महाप्रभु आए, मध्वाचार्य आए, रामानुजाचार्य, करेक्ट? भगवान आए, संत आए, तो शास्त्र यहाँ दिया गया है। तो इस जगह और सारी पवित्र नदियाँ इधर हैं, बड़े बड़े धाम इधर हैं। तो इधर जो जन्म है एक्चुअली साधारण से नहीं मिलता। यहाँ जन्म मिलता है, मनुष्य का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत आसान है इधर। तो ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम इंजीनियर नहीं बनो, डॉक्टर नहीं बनो, वो तो ठीक है कर लो, लेकिन इसको नहीं भूल जाओ। वो तो सब जगह बनते हैं लोग, इसमें क्या तुम तोप फेंक दोगे। करेक्ट? लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं भूल जाओ। देयरफॉर ऐसा अपना दिनचर्या प्लान होना चाहिए सबके लिए। एक साइड तो हमको कुछ करना ही है पेट पालने के लिए, सभी को करना है, लेकिन दूसरा साइड में साथ में आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज उसी से हमको संतुष्टि मिलेगा। ठीक है? पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब हम चीज़ संतुष्ट होंगे तो हम दूसरों को भी दे सकते हैं। भारत भूमि जन्म हो यार, जन्म सार्थक करी। पहले अपना जीवन सफल करो, देन करो परोपकार। इस बेनिफिट को आप दुनिया भर को दो।
यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश है. Prabhupada said he specifically gave this duty to the Indians. Do it. इसको spread करो. Correct? So we should therefore, without hesitation, seeing the guidance of the Purvacharyas, we should determine what is to be done, what is not to be done. ठीक है? And what is to be done? Don't do what is to be done. Anything for pleasure of Krishna, do it. What is not to be done? Anything for your own satisfaction is not to be done. Then actually you become just like नौकर का क्या काम है? हमेशा मालिक के सेवा करना. करेक्ट? मालिक खुश हो, उसका जीवन सफल. तो मनुष्य जीवन सफल होगा जब भगवान खुश हो जाएंगे. ठीक है? इसलिए. लेकिन क्या अभी मूर्खता, पूरा दिन अपने बारे में ही सोचते रहते हैं. सोचो क्या सैक्रिफाइस कर, तुम्हारा जीवन में सैक्रिफाइस क्या रह गया? फिर अर्जुना ने सैक्रिफाइस किया ना. करेक्ट? अपने बारे में सोचा, भगवान के बारे में सोचा. उसको तो मन नहीं था युद्ध करने, नहीं, भगवान चाहते हैं. एवरीथिंग इज रेडी टू सैक्रिफाइस. अपने बारे में सोच के क्या तुम तोप मार लोगे. ठीक है? सो इन दिस वे वी शुड डिटरमिन. दैट इज द एसेंस ऑफ शास्त्र विधि. ठीक है? द डिटेल्स ऑफ शास्त्र विधि आर गिवन बाय द आचार्य. आचार्य लोग बताते हैं क्या चीज़ करने का, नहीं करने का. जैसे प्रभुपाद जी बोले क्या करने का है, 16 माला जप करने का है. क्या करने का है, भगवत गीता पढ़ने का है. क्या करने का है, मंदिर जाने का. ये सब आपकी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हो गई. ठीक है ना? और क्या नहीं करने का है, विकर्मेति किम कर्म किम अकर्मेति. हेयर अकर्म सेज व्हाट इज नॉट टू बी डन. क्या चीज़ नहीं करने का है, 4 नियम नहीं तोड़ने का है. क्या नियम नहीं तोड़ने का है, नशा नहीं करने का. हम लोग तो चाय कॉफ़ी भी नहीं छूते. क्या मतलब है उसका. देन नेक्स्ट, जुआ नहीं खेलने का है, गेमिंग भी नहीं करने का है, मोबाइल में बैठ के या खाली टाइम बर्बाद. एक क्षण बर्बाद नहीं होना चाहिए. वो मनुष्य किसको आप ऑनर करोगे? अपने आप का चेहरा नहीं देख सकते शीशे में. क्यों? घंटों बर्बाद कर देते हो बेमतलब की चीज़ों में. क्या है आपकी, अपने को क्या इज्जत करोगे? करेक्ट? क्यों बर्बाद करते हो टाइम. ठीक है? तो विकर्म, तरह तरह के विकर्म है, उनमें टाइम बर्बाद नहीं करो, तब आपका जीवन सफल होगा. विकर्म है बंद करो, कर्म, लेकिन कर्म विकर्म आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि आपके पास बुद्धि नहीं है. अभी बुद्धि भ्रष्ट है. इसलिए आचार्य से लिया जाता आदेश, उसको बोलते हैं सरेंडर. गुरु मतलब क्या? क्यों हम इस्कॉन में प्रभुपाद जी को आचार्य बोलते हैं? बिकॉज वो बताते हैं क्या करने का, क्या नहीं करने का. तो आप आचार्य की शरण लीजिए, आपको पता चलता है क्या करने का, क्या नहीं करने का. आपका जीवन सुरक्षित है. आपके जीवन, आप सुरक्षा में हो. करेक्ट? जब भगवान के आदेश को पालन करते हो आचार्यों की गाइडेंस से, करेक्ट, गाइडेंस तो चाहिए हर चीज़ के लिए, तब क्या होता है, आपका जीवन सुरक्षा हो जाता है. ठीक है? और आप भगवान के चरण में चले जाते हो, जीवन सफल हो जाता है. श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की.